Hello students, now we will discuss question number 26, paper 2, chemistry, code 5. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि डाइल्यूट H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में एक कंपाउंड दिया गया डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो फेरेट सेकेंड, इसका ऑक्सीडेशन किया गया किसके द्वारा? MnO4 माइनस आयन के द्वारा। तो अगर हम रिएक्शन लिखें जितना मैंने सवाल पढ़ा उसके हिसाब से, तो रिएक्शन क्या आएगी? MnO4 माइनस आयन, जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया था वो कॉम्प्लेक्स क्या था? अगर मैं फॉर्मूला लिखूं FeC2O4 होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस माइनस 2, इसका ऑक्सीडेशन किया गया। इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा किसने करा? MnO4 माइनस आयन ने करा। और किस मीडियम में किया? एसिडिक मीडियम। तो हम ये रेडॉक्स, स्टैंडर्ड रेडॉक्स चेंजेस में पढ़ते हैं कि एसिडिक मीडियम में Mn+7 या Mn+7 में किस में जाएगा? Mn+2 में जाएगा। प्लस इसका तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन किस किस का होगा? तो यहां आयरन +2 में है, तो आयरन +2 का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा? आयरन +3 में हो जाएगा। यहां कार्बन कितने में है? ऑक्सिलेट में। कार्बन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में। तो +3 से ये किस में जाएगा? CO2 +4 में चला जाएगा। और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी तो होगा ही होगा। अब हमने रेडॉक्स रिएक्शन में इसको बैलेंस करना सीखा है रिएक्शन को, सो वी कैन बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। और बैलेंस करने पर जो कोफिशिएंट आएंगे वो मैं लिखता हूं। इसका कोफिशिएंट आएगा 8, इसका कोफिशिएंट आएगा 1, लिखो या ना लिखो। इसका कोफिशिएंट कितना आएगा? 1। Mn का कोफिशिएंट भी कितना आएगा? 1। आयरन का कोफिशिएंट आएगा 1। CO2 का कोफिशिएंट आएगा 4 और H2O का कोफिशिएंट आएगा 6। ये हम पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इक्वेशन को बैलेंस करना। तो पहला स्टेप तो इस सवाल का ये था कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा था कि MnO4 माइनस आयन इस कॉम्प्लेक्स को ऑक्सीडाइज करता है, तो पहले स्टेप में तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। अब सवाल क्या है? सवाल आपसे पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ H प्लस आयन अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ H प्लस आयन अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सा आयन? MnO4 माइनस आयन। अब आपको ये इक्वेशन में दिख रहा है कि जितनी देर में 1 मोल MnO4 माइनस आयन Mn+2 में जाएगा उतनी देर में इसके कितने मोल लग जाएंगे? 8 मोल। तो व्हाट इज द रेशियो नाउ? 8:1। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 8। थैंक यू। Dear students, today I am discussing JEE Advanced Exam 2015, Paper 2, Code 5, question number 27. In this question, first reaction involve dehydration of alcohol, and in second reaction, syndiol rearrangement takes place. So in this question, at first this structure is given. So in this structure, by the help of proton, this hydroxy group protonated, and by the removal of H2O group, this carbocation is formed. After carbocation formation, rearrangement takes place from 1-2 shift. So methyl group shift from this position to this position, and then this carbocation by removal of proton form alkene as a product. This compound is known as P. Then this P compound react with cold and dilute KMnO4, which is known as a Bayer reagent. This Bayer reagent addition of OH group takes place by syn addition on
double bond, carbon carbon double bond. So final product Q is form this one, and this Q compound is form contain 4 hydroxy group, 1 2 3 and 4. So in this question total number of hydroxyl group is equal to 4. So final answer is 4. Thank you. Dear students, today I am discussing JEE Advanced Exam 2015 Paper 2 Code 5 question number 28. In this question, all 4 given reactions gives benzaldehyde as a product. First reaction is known as a Gattermann-Koch aldehyde synthesis reaction. In this reaction, benzene react with carbon monoxide and HCl in the presence of anhydrous aluminum chloride and CuCl. Then product benzaldehyde is formed. In second reaction, C6H5CHCl Cl H2O in the presence of heating gives this compound, and by the removal of water benzaldehyde is obtained. In third reaction, benzoyl chloride react with Lindlar catalyst, which is hydrogen in the presence of palladium barium sulfate, produce benzaldehyde. And finally methyl benzoate by the reduction of dibyl H produce benzaldehyde. Dibyl is the reducing reagent, which is full form is diisobutyl aluminium hydride. It occurs restrictive reduction in this compound to benzaldehyde. So all 4 reactions gives benzaldehyde as a product. So final answer is 4. Thank you. We are going to discuss JEE Advanced 2015 Chemistry Paper 2nd, Code 5, question number 29. In this question, we have to find out the 2 compounds. One is responsible for linear polymer and other for chain termination. In first option, this compound has 3 Cl. It can form cross-linked polymer, but in this compound there is no chlorine is present. Its hydrolysis is not possible, means this option is incorrect. In second option, two chlorine atoms are present. It means it can form a linear polymer, and the second compound has only one chlorine, means it can be used for chain termination. Then final answer of this question is B. But if we see other options, in this compound 2 chlorine and this compound has 3 chlorine. Due to presence of 3 chlorine, this compound cannot be used for chain termination. It can form cross-linked polymer and it can form linear. But we have to find out first compound as linear polymer and second for chain termination. In this option is also incorrect. In last option, this compound has 4 chlorine. It can form 3-dimensional polymer. And this compound has only 1 chlorine. It can be used for chain termination, but this compound can form 3-dimensional. In question it is written, first compound is used for preparation for linear polymer. This compound is not for linear polymer, means this option is also incorrect.
Then correct answer of this question is B. We are going to discuss JEE Advanced 2015 Chemistry Paper 2nd Code 5 question number 13. In this question, O2 is adsorbed on a metallic surface. Electron transfer occurs from metal to O2. O2 इसके पास लोन पेयर है दोनों ऑक्सीजन के पास और बोल रहा है कि मेटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो O2 पे ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअल में मेटल जो M है एक तरह से O2 के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके ये वैकेंट ऑर्बिटल को दे सकता है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है मेटल का इलेक्ट्रॉन O2 को ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक तरह से बैक डोनेशन हो रहा है यहाँ पे O2 में। सबसे पहले ये जो O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखना होगा। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 16। इस 16 इलेक्ट्रॉन का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ये बनेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, pi 2px एंड pi 2py2। अगर हम यहाँ तक काउंट करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। pi स्टार 2px 1 एंड pi स्टार 2py 1 एंड सिग्मा स्टार 2pz ये वैकेंट है। तो यहाँ पे जब बोल रहा है कि O2 एडजॉर्ब हो रहा है मेटालिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मेटल से O2 में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर O2 में जा रहा है ये एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग अभी पूरी तरह से ऑक्युपाइड नहीं है। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस हमें देखने ट्रू कौन सा है। फर्स्ट बोल रहा है O2 इज फिजिसॉर्ब्ड, तो यहाँ पे O2 और मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये फिजिक्स ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ये फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन बोल रहा है हीट इज रिलीज, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड हीट इज रिलीज, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बोल रहा है ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पाई स्टार में इंटर कर रही है तो सही लिखा हुआ है कि इसके पाई स्टार की ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हो रही है, तो इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज, इसको हमें ध्यान से देखना होगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू टोटल बॉन्डिंग माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके एंटी बॉन्डिंग में पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर कर रही है मेटल की, तो एंटी बॉन्डिंग की वैल्यू यहां बढ़ रही है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो O2 का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। तो इस तरह से अगर बोल रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज, तो ये करेक्ट बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के टोटल आंसर 3 हो जाएंगे, बी, सी एंड डी।